Hello everyone. Good morning. Myself Pavik Barot. I am a physics educator from Master Study for the BH. So today we are discussed for the laws of motion. Okay. So many times I will suggest for the physics world after then law after then unit and magnetism and sorry unit and dimension after then vectors and scalar physics with mathematics and now starting for the physics topics. It's very important and very huge topics are and without law of motion it is physics are not okay. So physics is zero without law of motion and without Newton physics and the classical physics are always zero. Okay. So today we are deeply discussed for the law of the motion. I will summary for the three law. I will explain for the one line. So it's a Newton's are a three law provided. First law are Newton's first law is stable or stable. It's a movement, then movement. Any particle are stable, then it is stable, and any particle are movement, then movement. It's my first law of the Newton's law. So now the second law of the Newton's second law provided the force is directly proportional to momentum rate of change of time, then del P by del T. Okay, now to combine an explanation and calculation now and after solution for the F is equal to ma जो it's a force का हमारा जो real formula है. Now third is it is a structure to distraction. How many force is applied for the body? It's a repulsion of the how much is the repulsion. Okay, जितना भी force हम इतने में लगाएंगे उतना ही force हमें हमें रिटर्न मिलेगा. ये है हमारा तीन लो. तो तीन लो की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस. उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करेंगे. तो हम सारी चीजों की डीपली बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स के. कंसेप्ट ऑफ फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फोर्स? कंसेप्ट ऑफ फोर्स टू टाइप के होते हैं. एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है. सो कॉन्टेक्ट फोर्स मींस कि किसी भी चीज का हम किसी भी चीज में कॉन्टेक्ट में रहकर मींस कि कोई आर द फोकस ऑफ द बिटवीन द टू बॉडीज. ओके, are you understand me? So are the focus is the act between the two bodies in contact. The two body are contact each other. It's for example tension, normal reaction, frictions. Okay, so it's very many example for the contact force of the body. Okay, so now the second point is my non contact force body. For example are the focus are the forces that act between two bodies separated. Both are separated but it is not a nearly. Okay, it's a range. For example two magnetic wire is it's a combine of the without any actual contact. Okay, so without any actual contact we are called non contact force and two bodies in contact we are called contact force. सो हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के फॉर एग्जांपल की बात करें तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम बिटवीन टू चार्जेस. ओके, सो उसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कोई भी पार्टिकल है हमारा, कोई भी इटसेल्फ ऑफ द स्टेट और रेस्ट बॉडी है, उसका यूनिफॉर्म मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉल करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम इनर्शिया कहते हैं. मीन्स कोई भी इनिशियली बॉडी ऑफ द चेंज बाय इटसेल्फ ऑफ द स्टेट और रेस्ट or state of uniform. Okay, initiability of a body to change by itself rest or state or uniform motion along the straight line is called the inertia of the body. So now the inertia of the body measured by the mass of the body. Heavier the body and the greater the force change in the three line. So first of all inertia of the rest, inertia of the motion and inertia of the direction. I will explain for the three types. Inertia of the rest means any particle of the body are straight any position point. After then inertia body or momentum, two body are move in this linear line. It's called my inertia body of the motion. And inertia body of the direction, any direction of the particle, then it's my dA. Okay, so it's my inertia of the direction. So it is similarly not, but I will explain for this some topics without any explanation, right? Okay, so after we are discussed for the Newton first law, do you know कि स्टेट बॉडी जो होती है वो स्टेट ही रहती है और मोशन वाली जो बॉडी होती है वो मोशन में रहती है. उसको हम फर्स्ट लॉ कहते हैं, जिसके अंदर कभी भी जब भी हम फोर्स नहीं लगाते फोर्स इज जीरो होता है. जब भी हमारा फोर्स जीरो हो जाए
ओके तब हमारा वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और एक्सेलरेशन आल्सो जीरो होता है। ओके अब ये एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता है वो हम पढ़ेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। ओके इट्स डिराइव फॉर द ए इज इक्वल टू जीरो एंड एफ इज इक्वल टू जीरो, व्हाई? सो इसको हम पढ़ेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। देन लॉ ऑफ द इनर्शिया जो हमारा है, लॉ ऑफ द इनर्शिया इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज द इनर्शिया? What is the inertia? One time I will repeat the inertia. The initiability body of the change by itself of the state of rest, the state of the rest or state of the uniform motion. It's called by inertia. Inertia is the inertia of the rest, inertia of the momentum, and inertia of the of direction. So law of inertia by Galileo Galilei सबसे पहले दिए थे। ओके उसके बाद न्यूटन सर ने दिए। सो सर आइजैक न्यूटन के बाद लीनियर मोमेंटम की हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम है हमारा, पता ही है कि पी कोई लीनियर मोमेंटम को पी पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी मास इनटू वेलोसिटी, मास मूविंग विथ वेलोसिटी। ओके वी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एम वी। उसका अगर हम यूनिट की बात करें तो ये है हमारा किलोग्राम पर मीटर सेकंड, एंड डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो ml पर टी। ओके सो इट्स यू नो किलोग्राम देन m, राइट? एंड मीटर देन l, एंड सेकंड इनवर्स इसलिए t इनवर्स। ओके सो ये सब अपना अपना तरीके से सब अपनी जगह से ठीक ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और इसमें ज्यादा मतलब टिपिकल कोई चीज नहीं होती है कि इसमें मतलब ज्यादा फोकस करें। ओके so now we are discussed about the Newton second law. Newton second law are very important formula, and how to describe for the Newton second law we will discuss about the some topics we are and many portion we are used for the Newton second law and third law. Okay तो न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ या सभी जगह पर यूज होता है। तो उसका हम है फर्स्ट पहले हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर एट ऑफ टाइम। ओके कोई भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स द टेक प्लेस इन द डायरेक्शन विद द फोर्स। ओके तो अगर हम यहाँ से कोई भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक हम कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट हमने रख दिया के। ओके एफ इज इक्वल टू के डीपी बाई डी टी। के है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब हम डीपी बाई डी टी की बात करते हैं तो डीपी बाई डी टी जो हमारा है ये हमने यहाँ लिखा है। तो डी बाई डी टी हमारा डेरिवेटिव पार्ट है। ओके डी बाई डी टी हमारा डेरिवेटिव पार्ट है। पी हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? पी हमारा है मोमेंटम। मोमेंटम मींस पी इज इक्वल टू एम वी पुट अप कर दिया हमने। उसके बाद इसमें हमने लगाया कौन सा रूल, u into v वाला रूल। ओके देन m as it is, okay, and dv by dt then a, or m as it is and dv by dt is equal to ma, right? So mass is my constant value, then dv by dt is a, so f is equal to ma. Okay so its second law can be written as f is equal to dp by dt as well as ma. Both are written as your second law. So now the SI unit of the Newton and CGS system is dyne. So 1 Newton is equal to 10 to power 5 dyne. Okay, it's a perfect value. So complete all the study with the second law of the motion. Now we are discussed for the impulse. So what is the impulse? Impulse is the received during the impact. Any types of the impact is the defined as the product of the average force. Okay, कोई भी एवरेज फोर्स का उसके टाइम पर कोई भी फोर्स एक इम्पल्स करता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं कि इम्पल्स रिसीव ड्यूरिंग इम्पैक्ट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स। कोई भी एवरेज फोर्स एट द टाइम एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट इज इम्पल्स। So impulse is also equal to the total charge change in the momentum, also change in the momentum। उसकी दो डिफाइन हम कर सकते हैं, ये तो क्या तो उसका मोमेंटम है वो रेट ऑफ चेंज है, सॉरी या तो मोमेंटम है उसका चेंज है। ओके मतलब तो दो मोमेंटम का P2 माइनस P1 है, और हम उसकी दूसरी बात कर सकते हैं I is equal to phi AB into T। ओके सो इट्स माय प्रॉपर वैल्यू। So impulse are good law, and after the third law of the motion. So what is the third law of the motion? And you know all the students are known. Third law of motion is every action there is an equal and opposite reaction. For example, one point F1 and second point F12 both are attract to each other. Then F12, okay, 1 to 2, but 2 to 1 is a
negative. Okay, so F12, how many steps speed to apply for the force 1 to force 2, then force 2 to force 1, every action of the reaction. Okay, so एक्शन रिएक्शन रूल भी हम इसको कह सकते हैं, और ये म्यूचुअली ऑपोजिट होता है टू डिफरेंट बॉडी के लिए, और द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नोन एज अ एक्शन एंड फोर्स और रिएक्शन बॉडी इज कॉल्ड द रिएक्शन. ओके, एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी. सो ये सब हमारे 3 लॉ की हमने बात की इसमें, कि इस प्रकार के हमारे 3 लॉ हमने देखे. तो अब इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लॉ. सो कंजर्वेशन ऑफ द लॉ क्या है हमारा? कंजर्वेशन लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता है कि हमारे पास फोर्स है जो डीपी बाई डीटी, पहले तो कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, या तो उसका नाइदर क्रिएट एंड आइदर आइदर स्टोर. ओके, मतलब उसका हम कुछ नहीं कर सकते. कंजर्वेशन मींस के उसका हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, उस चीज को कहते हैं कंजर्वेशन. अब वो किस चीज की है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी का ना हम कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो उसका भी हम मतलब ना तो मतलब मींस क्या होता है उसका, ना तो हम उसका एनर्जी कर क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम स्टोर कर सकते हैं. राइट, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है. मैंने कहा था ना कि इसको हम सेकंड लॉ के बाद हम कहेंगे कि हाउ टू एफ इज इक्वल टू जीरो देन ए इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो. सो यू नो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी देन एफ इज इक्वल टू ए में भी हम लिख सकते हैं. राइट, न्यूटन सेकंड लॉ टू it's called my ma. Right, so f is equal to now 0, then dp by dt 0 है. the dp by dt अगर 0 होता है तो हमारा ma भी 0 होता है. 100%. are you understand me? yes or no? okay, so a is में also 0. a is 0 then p is equal to constant होगा. सो एम पी इज इक्वल टू हमारा क्या है, m1v1 m2v2. अगर दो पार्टिकल है मेरे पास p और p इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मेरे पास p1 है तो हम m1v1 लिखते हैं, p2 है तो हम m2v2 लिखते हैं. कोई भी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप ले लो, उसमें इसी तरह से हमें प्लान देखना होता है. उसके बाद हम थोड़ी बहुत एनर्जी की बात करते हैं. एप्लीकेशंस हम बहुत सारी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हम एप्लीकेशन जो हमारी होती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले. उसके बारे में अगर हम विचार करें तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम है कोई भी. ओके, तो उस लीनियर मोमेंटम जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है. अगर हम उसका पॉपुलेशन ऑफ द रॉकेट एंड जेट प्लेन्स इज बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करें तो अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट एफ इज इक्वल टू माइनस यू डीएम बाई डी टी माइनस एम जी. ओके, ये उसका थ्रस्ट ऑन द रॉकेट है. एंड आफ्टर ग्रेविटी, आफ्टर जब ग्रेविटी हम लगाते हैं, इफेक्ट इन द ग्रेविटी निग्लेक्टेड. ओके, जब उसमें ग्रेविटी को हम निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है फोर्स, F is equal to minus um dbm by dt. Okay, it's my first of all population of the rocket jet planes and the based on the principle of the conservation of the linear momentum. तो हमारा जब upward thrust on the rocket होता है तो ये हमारा ये पोर्शन होता है कि F minus u dm by dt. It's for the mv. Okay, it's a u is a v. ओके, आप समझ लीजिए कि u है वो v है, लेकिन इसमें लिख नहीं सकते बिकॉज इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि u है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और v है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. तो हमारी इसमें इनिशियल वेलोसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है ना थ्रस्ट ऑन द रॉकेट के अंदर. सो ये है. अब उसके बाद हम बात करें कि अपवर्ड जो हमारा है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं. तो इसके लिए हमारा फॉर्म है v इज इक्वल टू यू ln m नॉट बाई m माइनस जी टी. देखिए अब हमारी यहाँ वेलोसिटी का जो टर्म है उसको हम इस तरह में अगर लिखे, ओके, तो उसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू ln m नॉट बाई m माइनस जी टी. ओके, बिकॉज कोई भी चीज होती है ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, ओके, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ग्रेविटी. ओके, और किसी भी चीज लीनियर में जाए, किसी भी चीज प्लेन में जाए, सर्कल में जाए, किसी भी चीज किसी प्लेन में जाए तो उसमें हम लगाते हैं एक्सेलरेशन ए. ओके, तो ये हमारी बात है, हमें आपको याद रखनी है. उसके बाद हम इसमें भी ग्रेविटी अगर निगलेक्ट कर दे तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू यू ln m नॉट बाई m. राइट, ये हमारा पोर्शन बच गया. अब हमें पता है कि 2.303 u इंटू log 10. ओके, जो हम ln है ln को हम log में चेंज करें, ln जो हमारा है उसको हम log के अंदर चेंज करें तो 2.303 u log 10 m नॉट बाई m इसको हम लिख सकते हैं. इसके अंदर हम m नोट की बात करें तो इसको हम कहते हैं इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूड दैट ऑफ द फ्यूल.
उसके बाद हम एम की बात करें तो ये है हमारा मास ऑफ द रॉकेट लेफ्ट। उसके बाद यू की बात करें तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एनी टाइम टी। ओके, कोई भी टाइम पर ये हमारी टी है टाइम। एल एन है हमारा तो एल एन ही होता है। और डीएम बाई डी टी जो हमारा इसमें आता है, जो डीएम बाई डी टी उसको कहते हैं रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल। ओके, तो हम एप्लीकेशन इस चीज जो देखे है वो इट्स very describe. Okay, it is not only for the formula, but I will not explain for the all the things. I only for the thrust for the only focus on your explanatory, sorry, only focus on your फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास जब अपवर्ड थ्रस्ट रहता है तब हमारा ये फॉर्मूला रहता है। उसमें से अगर हम ग्रेविटी को डिनोट कर दे तो हमारा ये बचता है। उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस अपवर्ड वेलोसिटी अगर हम लगाए तो इसमें ये आता है। ओके, और उसमें ये आता है। ओके, अगर निकाल दे और करते हैं तो तब ये आता है। तो ये हर एक प्रकार की हमारे पास एप्लीकेशन हमने देखी। उसके बाद हमने बर्नट आउट स्पीड। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होता है कि बर्नट आउट स्पीड, बर्नट मींस और कुछ नहीं है, बर्नट मींस कितना फ्यूल खत्म हुआ, बर्न कितना हुआ। ओके, तो ये चीज को बर्न आउट ऑफ द स्पीड, कितनी स्पीड में कितनी चीजें जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी रॉकेट है इज द स्पीड ऑफ द अटेन्ड बाय द रॉकेट when the whole of the fuel of the rocket has been burnt out speed of the rocket. Okay, कि कोई भी चीज अगर रॉकेट है when the whole of the fuel, जितना भी फ्यूल है उस रॉकेट के अंदर has been burnt out speed of the whole rocket, so it's my VB. Okay, it's my VB, then VB is my U log E m naught mr. And now to procedure 2.303, not 2.303. Okay, it is 3. Okay, 2.303. Okay, so m naught upon mr r is as well as, and after then apparent weight of a body in a lift. तो उसके बारे में हम बात करें तो कोई भी लिफ्ट मतलब ऊपर से बॉडी लिफ्ट होती है नीचे की तरह, तब कौन सी कोई भी वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। ओके, तो हम बात करें कि बॉडी इज एम जी, कोई भी ऊपर से आएगा तो उसका मास के साथ ग्रेविटी भी लगेगी है। अगर यहाँ से इस तरह होता तो हम लिखते एम ए, राइट, इस तरह होता तो हम एम ए लिखते। सो हियर इज कंसीडर द एप्रिएंट ऑफ द वेट ऑफ अ मैन स्टैंडिंग इन अ मूविंग लिफ्ट। सो कोई भी एक हम समझ लीजिए कि एक कोई स्टूडेंट है वो एक मूविंग लिफ्ट के अंदर है। इन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ए, then apparent weight of the body is r is equal to mg plus है। ओके, अगर हमने इस कंडीशन की बात करें तो दोनों में m तो कॉमन है, लेकिन g और a ये दोनों की बात करें तो g प्लस ए हो जाएगा, ग्रेविटेशनल प्लस ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो इसमें आ जाएगा g माइनस ए। ओके, अगर हम बोथ इक्वल की बात करें तो उसका वेट सेम रहेगा, और इस लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली कर देगा तो उसका वेट 0 हो गया। ओके, तो ये सब चीजें होती है, ये सब सिंपल केस के अंदर ही होती है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं और क्यों बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। अब किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें ग्रेविटी वाला क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करना है तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है कि सबसे पहले आपको उसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम इज अ कंसिस्ट ऑफ द डायग्रामेटाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी ऑफ द सब्सटेंस subsystem of the body isolated from the surrounding, showing all faces acting on it. While sketching the free body diagram, the following points should be kept in normal reaction and it's my A and B connected. Suppose समझ लीजिए कि हमारे पास 2 बॉडी है तो ये हमने बॉडी 2 लिख लिया यहाँ A और B। Always the normal or the surface on the which kept means इसका inertia सेम रहना चाहिए। अब दोनों का ऑब्जेक्ट A और B है उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक स्ट्रिंग के साथ। ओके, तो A towards the B and B towards the A, मतलब किसी भी तरह की चीज हो उसको एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन ऑफ द मोशन तो सबसे ज्यादा अच्छा है, और कनेक्शन ऑफ द मोशन ही उसका कंप्लीटली हमारा रेशियो है। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनता है। और अब थोड़ी बहुत हम थोड़ी एक्स्ट्रा इसकी न्यूटन्स लॉ के बारे में हमने जब बातें की कि भाई इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीज क्या होती है, तो उस ये सब नॉर्मल है। तो रियलिटी में अगर हमारे पास स्टार्टिंग में हम बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी एक बॉल है,
ओके, इसको मोशन का नाम देते हैं। ये हमारा एक ये पार्ट है, एक इस तरह से है, ओके, और एक इससे भी ज्यादा है, ओके। मतलब थ्री पार्ट से हमने ड्रॉ किया। एक हम यहाँ से एक बॉल को यहाँ से डिनोट करते हैं, नीचे की तरह थ्रो करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बॉल आएगा? तो ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा नॉर्मल टू बेंड है, और ये फुल बेंड है, ओके। जो थर्ड वाला दिख रहा है ये फुली बेंड है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले जिसकी भी अवरोध, जिसका भी जो आपकी मतलब स्पीड कम नहीं है, स्पीड सेम नहीं, सबको सिर्फ विदाउट फोर्स का ही हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो सबसे पहले ये तीसरा वाला जो है वहां से आएगा, क्योंकि इसी को हम कहते हैं गैलीलियो गैलीली का एक्सपेंशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिस्टम। कि उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई किसी भी चीज में अगर फ्री बॉडी हो और उसका शेप मतलब जितनी भी दूरी से मतलब आपको देखने को मिले, वो इतनी ही जल्दी आपको नीचे की तरफ आता दिखता है। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करते हैं अगर 2 मिनट की, अगर तो इसी के हिसाब से अगर हम उसकी बात करें, तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लिनियर मोमेंटम होता है, वो सेकंड ऑफ द लॉ ऑफ द मोशन के थ्रू आता है, ओके। तो सारी चीजें यहाँ पर डिनोटेड है। और फर्स्ट लॉ जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्टेबल है तो स्टेबल, और मूवमेंट में है तो मूवमेंट। सेकंड लॉ है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। एंड आफ्टर लास्ट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। And many topics we are discussed for the linear motions and the impulse and whatever want to do, okay. So it's a very huge topic we are discussed for the today. So I hope you are all the understand for these my topics, and completely study in the lecture, okay. Thank you so much, student.